20. 201 to 220. 220. And B2, 221, 221 to 240. 240. So 20 students are there. All right. Okay, almost 36 students joined. Let's start the session now. For this week, instead of problem solving, I'm going to complete a little bit of more portion of our syllabus, because much of the part we have yet not completed to give the task or problem solving to all of you. Tutorial sessions are given to complete our syllabus effectively, along with the more problem practice and MCQ practice if required. And probably, as we discussed in last week, after Diwali vacation, maybe our college will start in physical mode. So it will be easy for us to take the tutorial in tute sessions for 40 students, so that effectively I can utilize the time to recognize each one of you how you are performing in applied mathematics. So main purpose of this tutorial session is problem practice. So for today, instead of problem practice, we will be completing a small part of our syllabus, and then we'll take the problem practice. And after this week, in each tutorial session, probably I'll just take the problem practice instead of teaching and all. Will that be okay to everyone? Yes, ma'am. Yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yeah. Thank you very much. So before we proceed, let us talk a little bit informal. Is that HSMC course started? Started, ma'am. Okay, what is the name of the course? Universal Human Values. Okay, but specific name might be given, no? Ethics or something like that? Value education. Value education. Value education. Okay, okay. And DSA, who is teaching? Shailesh Patil, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it a discrete structure and algorithm? No, ma'am. Data structure and algorithm. Data structure and algorithm. I'm sorry. And who is teaching OOPS? Swati, ma'am. Swati Chandorkar. Swati Chandorkar. Okay. Which language you are studying? C++. C++. And in first year you studied C, na? Yes, ma'am. C. And what you studied then in CPPS 2? C, ma'am. Extended C. Extended C. Okay. Advanced C. Fine. Advanced. Yes, ma'am. Advanced. Yes, ma'am. Okay. And what is that DSAL subject? It's a laboratory for DSA. Laboratory. Yes, ma'am. DS lab. DSA lab. All right. And what is the different subject? So it's a discrete structure and algorithm, data structure and algorithm. Discrete mathematics also you are having in this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It's also mathematical subject. Yes, ma'am. 2 maths. 2 maths. And what is DE and CO? Digital electronics and computer organization. Okay, fine. So it's easy for you, 2 math subject, then 1 language, that too C++, it's very easy. Miss, मुझे तो comparatively C से C++ easy लगती थी. And 1 HSMC course. I hope it is having credit. It's a 3 credit course, no? Yes, ma'am. Okay. And discrete mathematics, it is 2 credit course. 2 credits, ma'am. 2 credits. Yes. Okay. Fine. So everything is started, and after joining the college in campus, it will be easy for you to communicate with all of us. All right. Ma'am, any news on that? Not yet, but I guess consent form you We have filled that. you filled that form, right? Okay. So yet that decision is pending. No discussion on the same. मैम कंसेंट फॉर्म नहीं आया था मैम हमें वैक्सीन से आया था मैम Vaccine. Yes, ma'am. Vaccine form. Okay, just vaccination information they have collected. Yes, ma'am. Yes, vaccine. So it's not a consent form mentioning your parent permission or something. No, ma'am. वो फर्स्ट ईयर मध्ये आलता तसा नव्हता आला मॅम. Yes, ma'am. बरं. Okay.
ठीक आहे, लेट अस सी, कारण अजूनही काही नोटिफिकेशन आम्हाला पण नाहीये की व्हॉट दे आर गोइंग टू डिसाइड. आणि जसं आम्हाला कळेल तसं तुम्हालाही लगेच कन्व्हे करण्यात येईल, बिकॉज मिनिमम 8 to 10 days you will require to prepare mentally to come over here and attend the college. Those who are outside of Pune, right? येस मॅम. आणि समजा कॉलेज ऑफलाईन झालं तर एक्झाम्स पण तसंच होणार का? मग एक्झाम ऑनलाईन, कॉलेज ऑफलाईन, और वाईस वर्सा, असं काही ऑप्शन आहे? जोपर्यंत ऑनलाईन आहे, जोपर्यंत तुमचं अकॅडमिक कॅलेंडर ऑनलाईनला सपोर्ट करते, तोपर्यंत सगळं काही ऑनलाईन होईल, एक्झामिनेशन ऑल्सो. आणि जेव्हा तुम्ही कॅम्पसमध्ये ऑफलाईन याल तेव्हा सगळ्या गोष्टी ऑफलाईन होतील, एक्झाम ऑल्सो. ओके मॅम. जोपर्यंत ऑनलाईन आहे सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन होतील. आणि येट आम्हाला पण क्लॅरिटी नाहीये, हायर एज्युकेशन मिनिस्टरनी डिक्लेअर केलंय, बट इट विल बी द डिसिजन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज. अजून युनिव्हर्सिटी मैम स्टार्टिंग में पार्शली ऑनलाइन होगा ना मैम? जिनका डबल डोज हो गया उनका ऑफलाइन है, बाकी को ऑनलाइन? नहीं, एक्चुअली इट विल डिपेंड ऑन द कॉलेज, वेदर college will call half strength physically and the rest of half strength they are taking virtually. It will be bit difficult to conduct that particular mode, blended mode. So probably after vaccination of each and everyone, college will call all the students. So yet it is not very much clear to all of us also. So we'll let you know as soon as it will get declared. But by that time, means whenever it will be declared, you will be given just 7 to 8 days to come over here in campus. So that may be possible. Let us see what will happen. But till Diwali, as I told you earlier, till Diwali they will not call you. Yes, Atharva. Ma'am, if there are offline exam, will be it MCQ exam or theory paper? See, for our subject, I can explain you. We are going to conduct IE1 and IE2, two internal evaluation examination based on first and second unit IE1, based on fourth and fifth unit IE2. So if it is online or offline, I am going to conduct that examination in terms of multiple choice questions, as you did in the first year, right? But MT examination, if it is on offline, it will be theory exam, subjective. And end-term exam will be also subjective if it is offline mode. If we are still continuing in online mode, MT examination will be multiple choice examination for maths at least. So we will intimate you. Ma'am, if by any chance there is a blended mode of study, so exam will be online, ma'am, or offline? You are asking about the exam or teaching? Ma'am, exams, ma'am. If there's a blended mode, ma'am, then how the exams are going to be conducted, ma'am? No, it will be difficult to conduct in a blended mode. Because it will be injustice those who are coming here and giving offline examination and those who are sitting at home and giving online examination. So it will be either or mode, for maths at least. For rest of subject also, blended mode of examination they will not support. I mean, any teacher will not support. Because it will be just... मॅम टाईप सेम असेल, म्हणजे फक्त ऑनलाईनच असेल प्रॉक्टर एक्झाम, फक्त जे ऑफलाईन येत असेल ते कॉलेजमध्ये येऊन देऊ शकतात असं. नाही नाही, कारण की ते स्टार्टिंगला पण आम्हाला केलं होतं तसं की तुम्ही येऊ शकता कॉलेजमध्ये ज्यांना द्यायचं असेल त्यांना. हा, पण ती ऑनलाईन एक्झाम असेल तर म्हणजे आम्ही सेटअप केला होता, right? But that is not a blended mode of presence that you are asking. That is yes, ma'am. Yes. But blended mode of presence subjective examination ला applicable नसेल, कारण इथं येऊन एक्झाम जे देतात ते stringently will be monitored आणि घरी बसून जे एक्झाम देतात त्यांना प्रॉक्टेड वेनी केलं तरी इट विल बी बिट डिफरंट सिनारिओ. त्यामुळे सब्जेक्टिव्ह एक्झाम जेव्हा असेल ना तेव्हा ती ब्लेंडेड मोड मध्ये डिफिकल्ट असेल कंडक्ट करणं. बट ऑनलाईन एक्झामिनेशन इन ब्लेंडेड मोड ऑफ प्रेझेन्स इज फिजिबल ॲज यू डिड इन फर्स्ट इयर. Yes, ma'am. We are talking about that. Yes. Okay. Let us see what will happen. Okay. By that time, we have to continue online, and as we are having less lectures and much of the syllabus, so we asked for these type of tutorials. So set yourself free and try to ask questions also in tutorial sessions and try to
give the answers also. It will easy for all of us to proceed with the syllabus in a good manner. Okay. Yes. So let us start now with the syllabus. Let me share the screen with you all. In the morning session itself, we completed one part, which is a shortcut method, case 1, where exponential function and its different types we studied. And now we will be focusing on the next case and its specification. So next case is, this is case 2. And we will be discussing on f of x, which will be given as either sine or cos of ax plus b. Now here a and b are constants and x is your variable. So our question is to find out yp. And the formula for yp is 1 upon phi of d operated on sine ax plus b or 1 upon phi of d operated on cos of x plus b, as it is asked. So in this case also, how to find out the formula for the same? Phi of d, if I'm operating, I'll take one example on sine of ax plus b. If we are operating in this way, I'm getting different results if phi of d is different. Suppose phi of d only consists d operated on sine of ax plus b. It is going to give you result as a into cos of ax plus b. Right? Similarly, if I apply d square on sine, it is going to give me one more derivative of this function. So it's minus a square into Ma'am, sine. recording. Yes. See this over here by that time. Case 3 we are discussing. Case 1 and 2, it's about the e raised to power ax and a raised to power x. And case 3 about the trigonometric functions sine and cos. Apart from these two functions, rest of trigonometric functions जो है sec है या cos है, cosec है, tan है या cot है, इनके लिए हम आइदर जनरल मेथड या फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करनी है ये हम सीखेंगे. वैसे जनरल मेथड के लिए सेक वाला प्रॉब्लम हमारे पीपीटी में सॉल्व है. मैंने 2 क्लासरूम सेशंस में ये प्रॉब्लम नहीं लिया है. कोसेक, टैन एंड कॉट के लिए हम प्रॉब्लम्स आगे जाके देखेंगे. ऑलराइट. एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो केस 3 का जो फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये एक सिंगल लाइन याद रखनी है. डी स्क्वायर will be replaced by minus a square. जैसे कि एक्सपोनेंशियल के केस में हमने क्या किया था, e raised to power ax के लिए d को रिप्लेस कर दिया था हमने a से. वैसे यहाँ पर d स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस a स्क्वायर से. अगर सिंपली d है तो वो एज इट इज रहेगा. एंड उस d के साथ क्या करना है ये भी हमें देखना है. सो इफ d इज देयर, नो चेंज. d क्यूब इज देयर, यू कैन राइट डाउन d स्क्वायर इनटू d एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय d as it is. d स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा माइनस a स्क्वायर से, तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा. सिमिलरली फॉर हायर पावर्स ऑफ d वी कैन अप्लाई. लेकिन ये अप्लाई कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. आई होप दैट रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. यस, okay, so I'll continue over here. So I was talking about phi of d operated on sine of ax plus b. अगर मैंने सिर्फ d अप्लाई किया तो मुझे ये डेरिवेटिव मिलेगा. d स्क्वायर अप्लाई किया तो ये डेरिवेटिव मिलेगा साइन ऑफ ax प्लस b. d क्यूब अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, ओवर दिस फंक्शन दिस इज माइनस a क्यूब इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b एंड सो ऑन. राइट. सो जैसे हमने phi of d ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ax प्लस b इस पर से ऑपरेट किया है, उसी सेंस में हमें यहाँ पर phi of क्या मिलता है ये चेक करना है. ऑलराइट. अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं यहाँ पर phi of d स्क्वायर के लिए चेक करती हूँ. दिस इज ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ax प्लस b. तो d स्क्वायर के लिए जहां पर d की पावर इवन है, वहां पर आपको ये मिल रहा है phi of माइनस a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax प्लस b. सी दिस
स्टेप। डी क्यूब के लिए डी रेज टू 5 के लिए हमें ये राइट हैंड साइड फंक्शन कॉस मिलता है, जिसको कन्वर्ट करना मीन्स आई नीड टू अप्लाई ax plus b plus or minus pi by 2 like term, so that will not do over here. So हम सेकंड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर से। ऑब्जर्व दिस टर्म, सेकंड टर्म, and with this we are going to generate the formula over here. So operating with 1/5 of d square on both sides and then operating with dividing both of the sides by 5 of minus a square as we did for the exponential term, हमें यहाँ पर yp का जो फॉर्मूला मिलता है ना वो इस सेंस में मिलता है 1/5 of d whatever it is operated on sin of ax plus b. यहाँ पर d की पावर्स कुछ भी हो सकती है, इवन ऑड, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में yp ऑब्टेन करते वक्त करना क्या है, 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर किससे रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से इनटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. So this particular replacement just we are going to do to get our yp if the function is trigonometric sine or trigonometric cos. cos के बारे में भी सेम इसी वे में होता है. cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन. साइन का फिर से डेरिवेटिव क्या है, cos. तो जब d स्क्वायर से हम ऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मिलेगा वहां पर भी. And in similar sense, I can write down this step for cos of ax plus b also. All right. Now the question is that if this is true, if phi of minus of a square is not equal to 0. But what if the case of failure? So this is our first step. Case of failure कब आएगी? If phi of minus a square is equal to 0. See, here initial part of proof I explained you, and it will be carried out in similar sense how we did for that exponential term. So I will not prolong it much. Nextly, ये जो specific cases है ना वो हमारे लिए important है. So I'll elaborate that. So suppose this phi of minus of a square is not equal to 0. So this case will be true. Suppose it is equal to 0. Then we are going to get the case of failure. In that case, what we have to do? In that case, we have to follow the same rule what we followed for the exponential term. So 1/5 of d operated on sine of ax plus b can be written as x as it is in the numerator with power 1 क्योंकि एक ही बार केस ऑफ फेलियर हुई है. Then phi dash of d, यहाँ पर मैं ये डी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो या डी के फॉर्म में भी रख सकते हो. सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पर साइन के केस में कि आपको डी स्क्वायर से को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से. ठीक है. सो यहाँ पर आ जाएगा फाइ डैश ऑफ डी एंड नाउ दिस इज ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. और यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करनी है डी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर से. फिर से बेटर वे में सब तरफ ए स्क्वायर लिख देती हूँ, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपकी सारी टर्म्स फाइ ऑफ डी की डी स्क्वायर के ही पावर में होंगी, ऐसा नहीं है. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर के लिए. अब ये भी ट्रू है फाइ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर नॉन जीरो है तो. एल्स आई विल गेट अगेन केस ऑफ फेलियर if phi dash of minus a square is equal to 0. Then again I have to write down our yp as 1/5 of d operated on sine of ax plus b, and ये हमें मिलेगा इस वे में x square upon phi double dash of d square means यहाँ पर जो phi dash of d square है इसका फर्दर डेरिवेटिव, एंड यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करनी है डी स्क्वायर की माइनस ऑफ ए स्क्वायर से. सो आप यहाँ पर शायद समझ रहे हो कि हम सेम वे में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में की थी, लेकिन एक रिप्लेसमेंट क्या है, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं एंड सो ऑन. सो ऐसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं. अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जनरेट हो सकता है कि ये केस ऑफ फेलियर कब आएगी. मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. यहाँ पर इट्स 1/d² प्लस
a square operated on sine of ax. Is this the case of failure? आपको करना क्या है, d square को रिप्लेस करना है, मैं कलर माइनस ए स्क्वायर माइनस a square, ठीक है, एंड ये प्लस a square एज इट इज, दिस इज साइन ऑफ ax. तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस a square प्लस a square 0 बन रहा है, सो दिस इज योर केस ऑफ फेलियर. अब यहाँ पर मुझे रिप्लेसमेंट ये फॉर्मूला या सब केस उसकी अप्लाई करनी है. सो दिस गोज लाइक दिस, x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ d ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ax. अब यहाँ पर ये x/2 हम साइड में रखते हैं, क्योंकि ये 1/d जो ऑपरेटर है ना, वो सिर्फ साइन पर अप्लाई करना है हमें, x पर नहीं. x हमारा इंटीग्रेशन के प्रोसेस के बाद आ रहा है, वहां पर कुछ हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे x में. तो हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो ये वाली टर्म करनी है. दिस इज x/2. 1/d को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1/d इज योर इंटीग्रेशन, राइट. तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax इंटू dx. इंटीग्रेट करो इसे, दिस इज x/2 इंटू ए इंटीग्रेशन इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ ax. ए इंटू बनना अपॉन ए, हाँ डिवाइड बाई. So this is minus x into cos of ax upon 2a. So ये हो गया हमारा y2. Right? Is it correct? And understood everyone? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. So यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको केस ऑफ फेलियर में 1 by 1 स्टेप कैसे लेनी है ये बताया. अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे पावर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल इसकी जनरलाइज्ड केस में लेती हूँ, 1/d square plus a square bracket raised to r operated on sine of ax. In that case, ये जो केस ऑफ फेलियर है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, r टाइम्स. तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ, -x/2a bracket raised to r into sine of ax plus b plus r times pi/2. करेक्ट. यहाँ पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने यहाँ पर लिया है, तो क्या मिला आपको, -x/2a की टर्म मिली है, मीन्स इसका पावर 1, करेक्ट. लेकिन cos की टर्म मिली है, साइन की नहीं. तो अगर cos की टर्म साइन में कन्वर्ट करनी है, तो मैंने जैसे बोला था ना, प्लस माइनस pi/2 का एडिशन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम प्लस का कर रहे हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एनीथिंग विल डू. तो मैं प्लस ले रही हूँ, एंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू 1 रख देती हूँ, तो मेरी ये प्रीवियस केस मुझे मिल जाएगी. लेट अस डू दैट. r इक्वल टू 1 करा तो मुझे प्रीवियस वाली टर्म मिल रही है यहाँ पर, r इक्वल टू 1 तो -x/2 है, ये टर्म भी मिल रही है यहाँ से, एंड यहाँ पर r इक्वल टू 1 रख देती हूँ. सो दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस pi/2 इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा. तो ये टर्म मुझे मिल रही है, तो सही जा रहा है ये फॉर्मूला हमारा. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जनरलाइज्ड केस में. एंड मैंने जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म के लिए भी बताया था, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या कुछ टर्म इसकी मिसिंग है, इन दैट केस आप स्टेप बाय स्टेप केस ऑफ फेलियर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. आई एम सॉरी, वन मोर टर्म आई फॉरगेट, इट्स 1/r फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव से मुझे ये कांस्टेंट वाली टर्म भी मिलती है, 1/r फैक्टोरियल वाज मिसिंग. या सो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला. एंड सेम केस वी कैन अप्लाई फॉर द कॉस फंक्शन आल्सो. कॉस के लिए भी सिमिलर लेवल पर सारी चीजें अप्लाई होगी, ठीक है. अब एडिशनली जैसे प्रीवियस लेक्चर में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इफ आई एम हैविंग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन प्रोडक्ट लाइक साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b. अगर इस टाइप का फंक्शन आपका हो गया, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज इक्वल टू, anybody? One by 2 sin of a plus b plus sin of a minus b. a plus b plus sin of a minus b. करेक्ट. आपका a b से छोटा है या a b से बड़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट चेंज कहां पर होगा, a - b वाला यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है. प्लस, हाँ यस यस.
ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मेरे साइन के टर्म के साथ साइन की टर्म ही प्रोडक्ट में आती है, सपोज साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ 2x ऐसी टर्म प्रोडक्ट में आ गई, तो क्या करेंगे? हाफ इनटू, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला इज देयर। मैम cos का है ना मैम पूरा फॉर्मूला? cos Cos a of plus b b minus Cos a minus b minus plus cos A minus a minus b plus b minus minus cos a plus b. minus cos a plus minus cos A plus B. ओके, एंड व्हाट इफ दो cos की टर्म्स प्रोडक्ट में आ गए? half of cos a plus b plus cos a minus b. So shall I write down in this way so that it will be easy for you to remember? yes ma'am Yes. Yes, ma'am. Okay. Then usual results of from trigonometric like sin square x, इसे हम लिख सकते हैं 1 minus cos square x. 1 minus cos square x. cos 2x Yes, cos 2x. अपॉन 2। 2 स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए हमें, स्क्वायर की टर्म अवॉइड करनी है। यस, Yes, okay, ma'am. एंड यहाँ पर e raised to power 0x ले सकते हैं इससे, एंड दिस इज माइनस cos of 2x अपॉन 2 तो कांस्टेंट टर्म है। तो हम एनी हाउ इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट के साथ ढूंढ क्या रहे हैं? ऐसी टर्म ढूंढ रहे हैं जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ जाए, लाइक साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ अनदर bx, कॉस की टर्म। हम प्रोडक्ट में कोई भी टर्म नहीं रख रहे हैं, ना ही हम पावर में कोई टर्म रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वाला जो केस है जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया वो पावर को या प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करके उसे सिंप्लीफाई करना है। देन कॉस के लिए सेम फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। तो ये और ऐसे बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है वो जहां पर अप्लाई होते हैं हम कर सकते हैं हमारे। एंड जैसे हमने पीपीटी में देखा, अगर मेरे पास b क्यूब की टर्म आ रही है तो इसे हम लिख सकते हैं d इंटू डी स्क्वायर। तो इस d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, इस d को एज इट इज रखो। d रेज टू पावर 4 आता है तो इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर, तो इस d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो और जो भी टर्म आएगी उसका स्क्वायर करना है, एंड सो ऑन। राइट, टाइप इज वेरी सिंपल। गॉट द पैटर्न? साइन ऑन कॉस के लिए हमें इस वे में करना है। Shall we go for problem? किसी को डाउट है यहां तक? प्लीज स्पीक। No doubt, ma'am. Yes, okay. So let us go for the problem. First problem. Now you tell me one by one the steps and all. D square plus 2d plus 1 operated on y is equal to 4 times sine of 2x. Yes, let us solve this. पहले yc करते हैं। क्या करना है? Auxiliary equation. What is this? This is phi of d is equal to d square plus 2d plus 1 is equal to 0. Correct? Roots are, this is d plus 1 bracket square is equal to 0, and hence roots are minus 1 comma minus 1 repeated twice. So yc क्या आ जाएगा आपका? c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus x into x. This is another way to write down your yc. Is it true? Tejas? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then yp. yp कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 अपॉन phi of d ऑपरेटेड ऑन f of x. तो ये फिक्स फॉर्मूला है हमारा। phi of d क्या है? d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। यहाँ पर d स्क्वायर को रिप्लेस करने पर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करेंगे आगे? ओके, चलो हमारे फॉर्मूला के अनुसार इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो मैं रेड लाइन से लिख देती हूँ यहाँ पर रेड कलर से, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 2, सो माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 4 से, सो दिस इज माइनस 4, लेकिन डी को हम एज इट इज रख रहे हैं 2d प्लस 1, 4 इंटू साइन ऑफ 2x. Am I clear? Now this can be written as this is 2d minus 3.
-4 + 1 हो गया -3 एंड 2d मैंने पहले ले लिया ऑपरेटेड, तो 4 भी बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है sin of 2x। अगर कांस्टेंट सिंगल आया है तो हम e⁻0x के साथ प्रोसीड करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट साइन के साथ प्रोडक्ट में आया है तो 4 हमने बाहर लिया, ऑपरेट होगा सिर्फ साइन पर। ओके, आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि सी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट दिया है कि d² को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। अगर d³ है तो उसमें से d² को रिप्लेस करो, d को वैसे रखो एंड सो ऑन। अब यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में d नहीं है, क्या ला सकते हैं हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो यस, हमें वही करना है, हमें रैशनलाइज करना है। सो 2d + 3 से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो एंड नाउ ऑपरेट ऑन sin of 2x। सो इससे होगा क्या, 4 × 2d + 3 मैं अभी के लिए न्यूमरेटर में एज इट इज रख देती हूँ, डिनोमिनेटर आ जाएगा 4d² - 9 4d² - 9, वेरी ट्रू, ऑपरेटेड ऑन 2x एंड नाउ चेक करो कि ये d² जो है -(a²) से रिप्लेस किया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, तो केस ऑफ फेलियर तो बन नहीं रही है यहाँ पर। यस मैम। ओके, सो प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट अस रिप्लेस 4 × 2d + 3 अपॉन 4 × d² को रिप्लेस कर रहे हैं हम -4 से -9 sin of 2x। अभी भी हमारे पास ये न्यूमरेटर में ऑपरेटर प्रेजेंट है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 4 डिवाइडेड बाय -25 एंड ये ऑपरेटर स्टिल बचा है जो जिसको ऑपरेट करना है sin of 2x पर। अब क्या करेंगे, now your phi of d or operator is in the numerator। डिफरेंशिएशन yes, ये फॉलो करेगा डेरिवेटिव की प्रोसेस। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 × डेरिवेटिव ऑफ sin of 2x एंड प्लस 3 × यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये प्लेन sin of 2x, 3 × sin of 2x ऐसे आ जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, -4/25 2 × cos 2x + 3 × sin 2x into 2, कांस्टेंट नहीं भूलना है हमें। मैम 2 × 2 × cos 2x Yes. sin 2x। So that's our YT, and hence our complete solution is C1 e⁻⁻x plus C2 x into e⁻⁻x plus या माइनस में लिख देती हूँ यहाँ पर 4/25 into 4 cos of 2x plus 3 into sin of 2x। दिस पैटर्न इज क्लियर। तो हमें ऊपर सारी मेंशन चीजें ध्यान रखने के अलावा हमें रैशनलाइज करना है, ये भी याद रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक हम रैशनलाइज नहीं करते तब तक नीचे डिनोमिनेटर में d² की टर्म नहीं आएगी। गॉट इट? सिर्फ d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन टू यू ऑल, d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं क्या? उससे भी d² की टर्म आ ही जाएगी ना डिनोमिनेटर में। यस, एनी रैंडम आंसर्स यू कैन गिव। मेरा क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ 2d + 3 मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में d से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्या? मैम फिर उधर -3d होगा ना फिर। हाँ, -3d होगा तो फिर से d की टर्म आ जाएगी। वी कैन नॉट डू दैट, फिर से मुझे d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। सो अननेसेसरी एक स्टेप वहां पर ज्यादा हो जाएगी। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद its conjugate। Got this problem, everyone? Yes, ma'am. Okay, next problem आप try करो। This is d² plus 2d plus 1 operated on y is equal to 2 cos of 2x। अच्छा, ये सिमिलर फॉर्म में जा रहा है क्वेश्चन, एक ही मिनट में दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। This is d⁻⁴ minus m⁻⁴ operated on y is equal to sin of mx। Yes, solve this। अब yz मुझे आप बताओ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ओवर हियर।
yp के लिए हम ट्राई करते हैं. It's 1/5 of d operated on f of x. Yes. Can we go for it? वाइसी बताओ मुझे पहले क्या आता है. Everyone please try to simplify this. तेजस समझता है ना? त्र्यंबक, राज, प्रांजल, कार्तिक, वैष्णवी. येस मॅम. Okay. Okay, done with problem. YC, sorry, not problem. YC हो गया? यस मैम. Okay, बताओ. मैम C1 plus C2x bracket e raised to mx नहीं, Plus? रिपीट तो आती ही नहीं है. मैम 4 रूट्स रिपीट होणार ना. m प्लस मायनस m आणि प्लस मायनस m असणार रिपीट. प्लस नहीं, मायनस नहीं. What are the roots? This is d square plus m square and d square minus m ओके. square. यस मैम. यस मैम. Everyone other can reply. अँड अजून एक गोष्ट मी सांगून ठेवते, म्हणजे आता आपण सेपरेट टाईप स्टडी करतोय, त्यामुळे आता लगेचच लक्षात येईल आपल्याला की काय करायचंय, कारण आपण केस स्टडी करतोय आणि त्यानंतर लगेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय. बट वेन कलेक्टिव्हली प्रॉब्लेम्स विल बी गिव्हन ना, इट विल बी बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट टेक्निक्स वी हॅव टू अप्लाय. Obviously, in shortcut method, the function form will tell you what techniques you can apply, but we need to attentive to apply all the techniques properly. Okay, yes. Anybody completed? YC? Atharva? Om Kinge? Rucha? Aditya? Ranjit? Yes, Kulkarni's brothers and sisters. Varad, Nipun, Akanksha. Yes, ma'am. Yes, what is YC? Rahul, Pranav, Harshada. Okay. Ma'am, it will be C1 into e raised to mx Okay, let me write down. Yes, plus C2 into e raised to minus mx plus e raised to 0x into C1x plus C2 into cos of mx. C1x plus C2, no? Ma'am, the roots will be mi and minus mi. Over here. So Yeah. it's your, suppose this is 0, it's your root, plus minus mi. Yes. So you noted it correctly, e raised to power 0x, correct. In bracket. C3 cos of mx C3 cos mx plus C4 sin mx. C4 sin of mx. Cos mx plus C4 sin mx. Yes. So your complex roots are not repeated.
इसलिए यहाँ पर C3x plus C4 ऐसे कुछ नहीं आएगा. Yes, ma'am. Got it. Okay. Now this vice is okay. Correct. Now yes, come to the YP part. Now what you have to do? You have to replace that d square by minus of m square. Yes. So let us replace it. D square bracket square केस ऑफ फेलियर है मैम. and d square को replace करना है minus of यहाँ पर m raised to 4. केस ऑफ फेलियर. Yes, this is case of failure. So minus of m square का square. So ये plus m raised to 4 हो जाएगा, minus m raised to 4 0. So this is your COF, case of failure. तो आगे क्या कर सकते हैं? Add on x in the numerator and denominator का डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव लेना है? इस वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है. What is it? 4. Yes. माइनस m raised to 4. Sorry, 0. No, 0. Yes ma'am, constant. Yes. And now x upon 4 is the invariable term and 1 upon d cube you have to apply on sin of mx. Okay? ट्रिपल इंटीग्रेशन. ट्रिपल इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर यहाँ पर 1 upon d square into d लिख सकते हो. See, ट्रिपल इंटीग्रेशन is the usual way. तो मैं यहाँ पर फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो आइदर ट्रिपल इंटीग्रेशन ले लो या ये मेथड अप्लाई कर दो. तो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर से एंड 1 upon d ऑपरेटेड ऑन कॉस साइन ऑफ mx एज इट इज. सो क्या आएगा? x upon minus 4m square and 1 upon d is the single integration of this term. तो ये आ जाएगा माइनस cos of mx upon mx divided by m. तो फाइनल आंसर है x into cos of mx upon 4m cube. Am I correct? And hence your Yes ma'am. general माइनस साइन माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. minus minus cancel हो जाएगा. Yes. So our final answer is yc plus yp. C1 e raised to power mx plus C2 e raised to power minus mx plus C3 cos of mx plus C4 sin of mx and plus your final yp x cos of mx divided by 4m cube. ठीक है, ये पूरी टर्म को डिवीजन में है. सो ये हो गया आपका आगे वाला टाइप. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैं 2 क्वेश्चंस दे दूं फिर इस टाइप पर. जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई एट योर. Yes ma'am. ओके, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो तो भी चलेगा. दिस इज d2y by dx square. प्लीज नोट इट डाउन. प्लस 2dy by dx प्लस 5y is equal to sin square t. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और एक देके ही रखती हूँ. एटलीस्ट एक सॉल्व करने की या दोनों सॉल्व करने की कोशिश करो. प्लस डी क्यू प्लस डी ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x. ये भी सॉल्व करो. तो इन दोनों के आंसर्स सुबह हमने जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे वो दोनों प्रॉब्लम्स के आंसर्स हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे एंड देन विल प्रोसीड. ठीक है, shall we stop? It's your lunch break now. Yes ma'am. Yes, let me take your attendance just. Roll number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 37 नहीं है. 38 absent, 39 40%. Okay. Yes, you can leave. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Yes. Thank you ma'am. Yes, thank you beta. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Yes beta, thank you.